हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। सबको जानते हैं क्या कुछ दिनों पहले ही आए थे, लेकिन यहाँ का माहौल मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करा। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरे को फिर से, अब होता है ना कि स्कूल के बाद अगर आप यहाँ की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर चुके होते, क्योंकि कॉलेजेस में इस तरह का फंक्शन आपको फिर से नहीं मिलता है। और फिर से एक मौका मिला है अपने बचपन को जीने का, जैसे स्कूल्स में हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे और सब कुछ करते थे। बस फिर से भी होता है ना, खोया हुआ बचपन लग रहा था कि अब बस खोने वाले हैं और फिर से वो वापस मिल गया। All teachers are great here. They have inspired me a lot with all the in every field actually. If you can say in maths, there were many concepts which we know how to make it in a very long way and so on. But the tricks which Anant sir gave, which Vinay sir gave, that wasn't really awesome. Nobody can match it. Nobody can beat that. Wherever you will go, you will see that everyone is giving you. For every single question, you will get a new trick. Yeah, I have this trick, but I know that I have come to a very good place from where I will clear every exam, each and every exam, with just support of all these teachers, and they are my life transformer. And I can't tell that I have no words more. Thank you. लगता है सर जो मजा नहीं आ रहा है ना। सच में सीतन, लगता तो यही है, क्यों ना ये गेम खिलवाया जाए। क्या गेम? तुमको लगता है कि ये लोग कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्यों ना अंताक्षरी खिलाया जाए। सच में आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो कौन अंताक्षरी खेलने के लिए तैयार है? प्लीज सबको तैयार हो जाइए, क्योंकि सबको खेलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गर्ल्स तरफ से और एक बॉयज साइड से, उसमें टीचर्स भी इंक्लूडिंग होंगे, ठीक है। स्पेशली विनय सर, खास करके समीर सर। तो चलिए विनय सर से ही स्टार्ट करते हैं। करना है कुछ काम, क्या करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके आप जान आधा हरा हुआ सब पानी लग रहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा, मेरे अंगने में तुम्हारा नाम है, शुभ नाम वाला वही नाम है। बस हो गया, चलिए ना, ये हमको कुछ न बोले तो भी प्यार पे मिला, हम उसी के लिए हम नहीं प्यार पे। हम भी कुछ न बोले तो भी प्यार पे मिला, हम उसी के लिए।
Actually, I have no idea that actually there is a function at the most leading and the most famous institute of Charles rather than Bokaro that is going to observe, and I think it is called Carewell function. Actually, for the first time, I'm getting or I'm hearing what is the Carewell function. It might be related to the, I think, some institution treat to the teachers, to the students, or maybe all the elements of this institute. So, first of all, actually, I have some of the important concerns that I would like to share with all of you. And the way talking about the management, talking about the students, the way you have organized the function, I think it is marvelous, outstanding. Actually, I have no words to describe. And you all are amazing, spectacular, because giving such type of hospitality and giving such type of function to the teachers, to the students, it is amazing, quite amazing. So actually, and I'm also very happy to see all of us being in a single roof, under a single roof, and I think making most of the time as a happy person. Actually, we are out of the coaching right now, so there is no classes right now. Actually, for the purpose of something different. For example, to maintain our energy, to do something extraordinary, and to do something unique. So. Actually, I have some important stories to share with you. So, I will try my level best to use the both English and Hindi. NSC के मतलब मेरा यहाँ लगभग 2 साल होने जा रहा है, and I have been teaching here for the last 2 years. And the way यहाँ coaching को जैसे रन किया जाता है. And actually, I also take the classes some other coachings as well. But वहाँ के जो एक environment होता है, यहाँ का जो environment है, मुझे यहाँ तो I'm really touched here. There is no doubt. And the most important, यहाँ ये differentiate करना भी बहुत tough हो जाता है, जैसे कि energy के point of view से, जितने teacher excited रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा student भी excited रहते हैं. And that is because of the career. अपने करियर के प्रति एक्साइटेड रहना भी इम्पोर्टेंट है। जिंदगी जीने का असली मजा तब आता है जब आपके लाइफ में गोल अचीव हो जाता है। और एनएससी एक सबसे बड़ा हसीन प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे एनएससी को मैं एक छोटा सा स्टोरी से डिस्क्राइब करना चाहूंगा। ये सच बात है कि छाता कभी बारिश को नहीं रोक सकता है। ये सच बात है कि छाता कभी बारिश को रोक नहीं सकता है, लेकिन छाता बारिश में खड़ा होने का हौसला जरूर देता है। एनएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पे अगर आप एनएससी में टाइम बिताते हो तो यहाँ वो कॉन्फिडेंस जरूर आपको मिलता है। सो मैं सारे स्टूडेंट से भी ये मेरी अपनी रिक्वेस्ट है कि अपने समय का एक प्रॉपर यूटिलाइज भी कीजिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी कहा जाता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे सके, इसलिए समय हमको भी कर दो कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है, समय ने अच्छे अच्छे को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए अपने टाइम को, अपनी पंक्चुअलिटी को एक असेट की तरह कैपिटलाइज कीजिए
और वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाए, और इस कदर ब्लेसिंग बन जाए कि आप लोग ना, जैसे इतिहास में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे ना जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बाबर। जैसे कोई भी उसका कैरेक्टर, जैसे इतिहास में पढ़ते बाबर का जन्म हुआ किसी कंपटीशन में पूछ रहा है, तो जरा सोच के देखो इस नाम की खासियत क्या है। उसके एग्जाम में पूछ रहा है, उसको पास कर रहे हैं और आपकी करियर में जॉब लग रहा है, तो आराम नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब अपने लाइफ को आप आगे फॉरवर्ड करो तो आपके नाम से ना लोगों को इंस्पिरेशन मिले। कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देखे सर, मतलब सोशल सर्विस के लिए हमेशा अगर कहते हैं, मैं ग्रुप में फोटो देखा सर का, पहली बार ऐसा लगा कि नहीं ये जो सोशल सर्विस का अवार्ड है सर ही क्यों ले, हम लोग क्यों नहीं ले। तो हमें भी ये सोच होनी चाहिए लाइफ में किसी भी स्टेज पे जा करके ये सर्विस का मौका मिले और हमें भी इस तरह का अवार्ड मिले। और ये अवार्ड ही हमें ऐसी है जो हमें आगे बढ़ाती है, दूसरों को इंस्पायर करती है। आप दूसरों के नजर में हीरो भी बनते हो। हीरो इन द सेंस मतलब आप उनसे इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, आप दूसरे को मोटिवेट करते हो। और मेरी लाइफ का हमेशा एक प्रिंसिपल रहा है कि मैं सीखने में और सिखाने में दोनों में बिलीव करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखा है। और एक स्टोरी है मेरे पास डिमोटिवेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर सर अक्सर क्लास में कभी ना कभी बोलते हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि आप लोग साथ शेयर करो। ये हो सकता है कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेइज्जत होना। जब तक बेइज्जत नहीं होगी ना, इंस्टेंट जब तक आपको मिलेगा ना, तब तक हमारी जो है ना एक आत्मा, या तो बोल सकते हैं हमारा कॉन्सेंस है नहीं। तो लाइफ में अगर आपको लगता है किसी से कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बड़ा कोई आपको मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसी की बात, उसी की चीजें आपको लाइफ में वो करवाती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। और सिर्फ उसको सुनना नहीं है, उसको प्रूव करके भी दिखाना है कि देखिए आपकी जो स्टेटमेंट है मेरी लाइफ को कहां से कहां तक ले गया। जैसे पतंग को पता है उसको आखिर में कहां जाना है, कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन पतंग की खासियत होती है वो कचरे के डब्बे में जाने से पहले आसमान की हाइट को छू करके आती है। तो हमें भी क्या करना है, आसमान की हाइट को छू करके ही अपने आप को इंप्रूव करना है। So, actually, I would like to wrap up my speech, and I'm really very happy to be the part of this function, and really I'm touched, and I'm grateful to all of you. Thank you for the management, thank you for the Nsc, for the lovely, I think morning, maybe lovely function, and I'm really amazed. Thank you so much. आप जरूर स्पेशल बैच मैनेजमेंट कराइए। इसका रीजन ये है ना कि आप समाज में रहोगे तो ही आप तरक्की करोगे। समाज से अलग हट जाओगे तो आपका पहचान खत्म हो जाएगा। ठीक है, भले ही बहुत सारे स्टूडेंट घर में तैयारी करता है, घर में तैयारी होता नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको एनएससी का जो आदत हो सकता है पढ़ा दे, आपको मोटिवेट करता रहे, लेकिन मार्केट में इतना निगेटिविटी है ना, इतना बिजी रहते हैं आप घर में, वो फिर वो माहौल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन भी है, पर्सनल सजेशन दे रहे हैं आपको आगे कुछ करने के लिए। जनरल बैच में यदि है कोई और स्पेशल बैच में नहीं है, वो स्पेशल बैच में जरूर एडमिशन करें, ठीक है। और एक छोटा सा थॉट है, कह रहा बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन वो लगातार यदि बहती है तो क्या बन जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो आपका छोटा छोटा कोशिश ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए ट्राई करते रहिए। क्योंकि हम एडवांस मैथ्स पढ़ाते हैं, अभी शीतल ने कहा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते तो सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं, तो दैट मीन्स हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए सारा क्लास अच्छा कोशिश करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से पढ़ाएं और आपको अच्छा नॉलेज दें। लेकिन एक और बात है, हमारे लाख अच्छा पढ़ाने से मतलब रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप अच्छा से नहीं पढ़ोगे। क्लास में बहुत कुछ हम सुनते हैं कि सर समझ में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है, समझ में सारा चीज आएगा, आपसे समझने का कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू। और आज का पार्टी बहुत अच्छा रहा। एक सॉन्ग मेरा सॉन्ग तो कोई चुरा लिया,
ठीक है, आज हम लोग सब मिलकर एक गाना गाते हैं, सब मिलकर, ठीक है। आज हम सबको पसंद आएगा, सबको आता है ये सॉन्ग, ठीक है। थैंक यू। एक बार खड़े हो जाइए सबको खड़े हो जाइए। गाना नहीं, ये कसम है, प्रण है, सबको मिलकर गाएंगे, है ना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। थैंक यू। हम होंगे कामयाब में समझ गए होंगे आप लोग। जो भी आप ट्राई कर रहे हैं जरूर कामयाब होइए, आगे बढ़िए। थैंक यू। सरकारी नौकरी के चक्कर में जो परेशान है, सरकारी नौकरी के चक्कर में जो परेशान है, मिल गई तो उसकी जिंदगी सबसे आसान है। और इसी जिंदगी को इसी तरह आसान बना गया है हमारे राहुल भैया ने। मेरी जगत का फंक्शन नहीं है, थोड़ा हल्ला उल्ला का पड़ेगा। ये बैच वाला अपना कुछ कर सकता है। दूसरा बैच वाला शांति से साइड पर बैठो, जितना देखें ना, ये तो सुनना मैं करना चाहिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आप यहाँ पे बोल रहे हैं, आपका बोलने का आदत भी हो गया, ठीक है। बैंक में लड़ना ही पड़ता है कस्टमर से, है कि नहीं? वो तो सुनना पड़ता है फिर मराठी में, बोलना पड़ता है हिंदी में, ठीक है। और यही बोलेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, पढ़िए, नौकरी तो लगना ही है, आज न कल तो लगेगा ही, सबका लगेगा, ठीक है। बस थैंक यू। भैया तो चलिए अब बुलाते हैं एक शख्स को, उसके लिए कुछ लाइनें। जितनी खूबसूरत वो खुद है, जितनी खूबसूरत वो खुद है, उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी मुस्कान है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन है? मुस्कान। यस, सो प्लीज वेलकम मुस्कान टू सिंग अ सॉन्ग। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑफिसर्स। आप सबके बीच एक गाना गाने जा रही हूँ, 2 लाइन शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आएंगे। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आएंगे। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर धाम आएंगे। कौशल्या के
थैंक यू, क्योंकि हम देखे हैं कि बच्चे 4-5 दिन में इस केयरवेल को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सारे बच्चे अपने इसके बाद केयरवेल का मतलब तो सबको पता होगा। फेयरवेल हम लोग ना कह के केयरवेल क्यों कर रहे हैं, ये सबको पता होगा। नहीं पता तो बता देते हैं। फेयरवेल का मतलब है कि आप जितना दिन पढ़े अब चले गए, अब आप यहाँ से पढ़ के जो। अब केयरवेल का मतलब है कि आप जितना दिन रहे उससे ज्यादा सर मैम हम लोग सबका आपको केयर करने की जरूरत है। हम लोग भी आपका केयर करेंगे और आप लोग भी हमारा केयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से फंक्शन को ऑर्गेनाइज किए हैं, उस सब के लिए सबको थैंक यू, सर लोग को थैंक यू। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने इरादों को नहीं बदलो, बल्कि अपने नुस्खे को बदलो, अपने तरीके को बदलो। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जब 6-7 महीना पढ़ लेते हैं तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो हॉस्टल में ही रह के पढ़ लेंगे, हमको एनएससी जाने का क्या मतलब है। सर का कहना है कि अगर दोस्ती करना है तो विद्या से करो, अपने ज्ञान से करो, दोस्त लोगों से नहीं करो। आप उदाहरण एक ताले और चाबी का ले सकते हैं, क्योंकि ताला टूट से टूट जाता है लेकिन बिना चाबी के नहीं खुलता है। हम लोग सबको ये पता है। और उसके अलावे हम लोग गुरु लोग क्या होते हैं, गुरु एक सड़क की तरह होते हैं, रास्ते की तरह होते हैं। गुरु जो होते हैं शिक्षक, माता पिता कोई भी हो सकते हैं, वो एक सड़क की तरह होते हैं। जो हम लोग तो वहीं रहते हैं लेकिन हमारे पर आने वाले सारे बच्चों को, सारे राह को अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग का भी क्या काम है, सही रास्ते में चलना, गुरु के बोले हुए बातों को मानना। सर बार कहते हैं कि बात मानना है, आप लोग को आंख मूंद के बातों को मानना है। एनएससी में आ गए हैं आप लोग, जॉब लेके ही जाइएगा, लेकिन सर में विश्वास रखना है, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा स्पीच था, बहुत मोटिवेशनल था। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी करण सर को, जो हमें जीके लॉजिक के साथ पढ़ाते हैं, और इनके पढ़ाने का तो स्टाइल कुछ और ही होता है। तो चलिए ये सारे सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं, सोनिया इतना मेहनत करती है, सभी लोग, राजू मेहनत करता है, राम मेहनत करता है, तब जाकर कोचिंग चलता है। मगर कुछ ऐसे भी पर्सनालिटी हैं कोचिंग के जिनको हम लोग एक पैसा भी नहीं देते हैं, मगर वो दिन रात मेहनत करते हैं कोचिंग के लिए। हम चाहेंगे कि अपने तरफ से उन लोगों को आज हम कुछ अवार्ड दें, अवार्ड रिकॉग्निशन। जैसे पूजा पिछले 1.5-2 साल से क्लास ले रही है यूट्यूब का, एक बार पूजा के ताली बनता है कि जोरदार ताली बजाओ। कि आज का जब लोग कैरवेल प्रोग्राम, ऐसे तो फेयरवेल होता है, फेयरवेल नाम कैरवेल होता है, रीजन है केयर करना है खुद का, एनएससी का, पढ़ाई का और सारे का। एक छोटी सी बात बोलना चाहेंगे, बहुत कॉमन बात है, हम लोग कहीं भी रहते हैं बट हम लोग में एक भावना होना चाहिए। भावना इन द सेंस कि अभी एनएससी में हम लोग इतने सारे हैं, सब कोई पढ़ाई करता है लेकिन किसी का जल्दी और किसी का लेट से जॉब लगता है। इसका रीजन है कि वहाँ पे आप अपनापन वाला भावना खत्म हो जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम देख रहे थे, आप लोग बहुत सारे देखते, उसमें लिखा हुआ था कि एक स्टूडेंट में 1 और 1 मिलके 2 होता है, 1 और 1 मिलके 1 होता है, और 1 और 1 मिलके 11 भी होता है। बोलने का मतलब है कि एक स्टूडेंट में ये भावना होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी आल्सो, 1 और 1 मिलके 2 होता है। इसका मतलब है हम में एक दूसरे के प्रति लगाव है, भावना, हम जुड़ गए उससे। पहला ये होना चाहिए, सभी समझाते हैं। दूसरी बात, 1 और 1 मिलके 1 हो जाता है, इसका मतलब सबके प्रति प्यार है, सबके प्रति प्यार है, मतलब वो अच्छा करेगा हम अच्छा करेंगे, ये सोच है। और 1 और 1 मिलके 11 होता है, इन द सेंस कि हम लोग सब में एकता, किसी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सब कोई पढ़ते हैं। ऐसे गाना के लिए हम फेमस है, गाना जरूर गाएंगे, बट हमको लगा एक बोलना जैसे ही है। ये गाना है
Sorry, खाना से फोन आ गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या हो किसी जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या हो किसी जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या हो किसी जाना। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाना था। आप लोगों को बहुत ध्यान आ गया। Once again, good morning officers, respected teachers, staff and students of batch ANC 2023. I am Seetal from batch 3 and it's my pleasure to speak on this momentous occasion on behalf of batch और our institute. तो आखिरकार वो दिन आ गया है जब हमारा बैच खत्म हो गया है और इसी के साथ एक नए सफर की भी शुरुआत हो चुकी है। इस गुजरे वक्त में हम सब ने बहुत सी यादें सजाए हैं, कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे थे। तो चलिए अब मैं कहना चाहूंगी हमारा
बैच सबसे खास रहा है क्योंकि इस बैच के दौरान हमें अपने कुछ नए लीडर्स भी मिले हैं। ये वक्त हम सबके लिए आसान तो नहीं था, लेकिन अनंत सर और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की मदद से हम सब ने हर मुसीबत को पार किया है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इन सभी लीडर्स का जो हमारा हर वक्त साथ देते हैं और हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा फेयरवेल नहीं केयरवेल है, तो सब एक नए रास्ते का सामना करेंगे हम, और नो डाउट ये सभी लीडर, ये सभी स्टाफ, ये सभी लोग हमारा इस नए दौर में बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। ये बैच भले ही साथ 8 महीने का था, पर यहाँ सचमुच बहुत याद रहेगा, बहुत ही बातें सीखी हैं हमने, और मुझे सच में यहाँ एक दूसरा घर मिला है। मेरा विश्वास है कि इंस्टीट्यूट हमें किताबों की नॉलेज से आगे बढ़कर भी बहुत कुछ सिखाता है। हर बच्चे में कोई बात है, हर बच्चा अलग है। ये इंस्टीट्यूट इस बात को प्रोत्साहित करता है, हमें हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देता है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और भी बहुत कुछ। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि टीचर्स पर विश्वास रखें, क्योंकि ये हमें रोशनी की ओर लेकर जाते हैं। तो अब हम सब एक नए, बहुत जल्द हम सब एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। हम जिस मुकाम को पहुंचने के लिए यहाँ आए हैं वो सब अब पूरा करके ही जाएंगे। मैं अपनी बात एक शायरी से खत्म करना चाहूंगी। मोती को अक्सर पत्थर समझा जाता है, मोती को अक्सर पत्थर समझा जाता है, पर सही कीमत तो सिर्फ जोहरी जानता है। मोती को अक्सर पत्थर समझा जाता है, पर सही कीमत तो सिर्फ जोहरी जानता है। हर बच्चे को अक्सर नादान समझा जाता है, पर उसकी असली उड़ान तो सिर्फ शिक्षक जानता है। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर हमको यहाँ बुलाने के लिए। हम तो कोई अभी नई तैयारी की है। एक्सटर्नल स्पीच मारा है। एक्सटर्नल स्पीच और क्या क्या बैच में हुआ 6 महीने 8 महीने साल तक यही सर हम तो पहले जनरल बैच में आए थे। हमको तो कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होता है कंपटीशन, क्या होता है क्या नहीं होता। स्टार्टिंग से हम कंपटीशन से कुछ बारे में जानते नहीं थे। यहाँ पे आए तभी हमको पता चला कि कंपटीशन भी कुछ होता है, कुछ निकलता है बैंक की। तो यहाँ पहले हम जनरल बैच में 6 महीने सर फिर हमको कोर्स किए, बोले कि नहीं अब बहुत अच्छी है तुम कर लो स्पेशल बैच में आ जाओ। फिर सोचे ठीक है आ जाते हैं कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। जैसा हम लोग जनरल बैच में करते हैं वैसा बहुत डिफरेंट होता है स्पेशल बैच में। जनरल बैच में हम लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ के जाते हैं, घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ पाते। लेकिन स्पेशल बैच में हम लोग दिन भर यहीं पे रहते हैं, जो पढ़ना है हम लोग को सिर्फ यहीं पढ़ना है। ओके फॉर द लास्ट थैंक यू वेरी मच। जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से ये माहौल बन पाता है। हर सुबह हम लोग को मोटिवेट करते हैं, हर बार जब भी उनको देखो एक नया एनर्जी दिखता है। आई डोंट नो वो ये कैसे करते हैं, पर इतना पावर शायद ही किसी में होता है। तो प्लीज सर आइए और रोज जाके आप जितना आपको कहना हमारे बैच के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में प्लीज कहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आवाज नहीं आई, थोड़ी आवाज आई है। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। अब लग रहा है सब कोई जिंदा है, मगर इस साइड तो कोई जिंदा लगा नहीं। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। अब लग रहा है कि सब में जान है। अगर जान है तो दिखाना भी है कि हमारे अंदर कुछ जान है। अभी ये बैच 2 बैच का केयरवेल था। क्या क्या बैच का नाम है? ए और सी बैच का। एक बैच एंड हो गया था दिसंबर में, मगर ड्यू टू माई ऑपरेशन ईयर का जो हुआ था उस कारण का केयरवेल नहीं हो पाया था। और इस बार सही में क्लास को इन लोगों ने जो डेकोरेट किया बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत केयरवेल देखे, मैंने भी देखा होगा, सोनिया भी देखी होगी। इतना सुंदर सजावट तो शायद फर्स्ट टाइम इन कोचिंग से हिस्ट्री। जोरदार तालियां। देखो ये तभी हो पाता है जब इनर्जेटिक लोग साथ में रहते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ प्यार से रहने वाला, एंजॉय करने वाला। इस बैच में एक से एक लोग हैं। हमसे कई लोगों ने कहा था कि आफरीन उतना सुंदर नहीं बोल सकती है,
तुम लोगों ने देखा हिंदी तो अच्छा बोली, थोड़ा डर रहा था, बच्चा सब थोड़ा डरता है। हम भी लाइफ में जब पहली बार बोले थे ना तो मेरा पैर ऐसे से हिल रहा था, ऐसे से हिल रहा था। तुम लोग भी देखो अभी जैसे ज्योति पकड़ी थी पेपर तो सर पर ऐसे हिल रहा था। हिलने से क्या हो गया, बार बार मौका तो हिलना बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर 6 घंटा बोलेंगे ना मुंह हिलेगा ना हाथ हिलेगा ना पाँव हिलेगा, कुछ हिलेगा? नाश्ते पे रहेंगे तो बोलते रहेंगे। आदत बनानी है और एनएससी हमेशा प्रयास करता है तुमको ओवरऑल स्मार्ट करने का। इस केयरवेल में हमको 2 चीज मिला बड़ा ही मजेदार। जैसे सदगुरु कृपा करे, इतना सुंदर शीतल बोल रही थी, वाह। एक बार शीतल के नाम पे अलग ताली बजाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोल रही थी। खास करके लास्ट में जो कुछ कुछ बात बता रही थी स्पीच टाइप का, जहां पर इसने 2-4 मिनट लगातार बोला, एज ए एंकर नहीं, एज ए मान लो स्पीकर, बहुत मजा आया। और हमको मजा उसमें भी आया था जब हमने सिमी को कहा कि बेटा इंग्लिश में बोलो। सिमी के नाम पर भी ताली बजाओ, क्या बात है। और हमको बीच में ध्यान भी नहीं रहा सपन कब बोला कब क्या किया, हमको तो पता नहीं चला। कुछ बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। सपन को बुलवाना था। कुछ बच्चियां बैठ जाओ, अब कोई काम नहीं, सामने बैठ जाओ। एक आदमी उधर से पीछे से घूम के आएगा, फैन ऑफ कर दो दौड़ के। इस बैच में अजीब अजीब टाइप के लोग हैं। अजीब मतलब अद्भुत टाइप के लोग। जैसे ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा एनएससी की हिस्ट्री में कि बैच चलते हुए बैच के स्टूडेंट को लीडर चुन लिए जाए। जैसे सपन, जैसे विद्युत, है ना, जैसे पारुल। तो तीनों के नाम पर ताली बनता है कि नहीं? जोरदार। और जब भी मुझे मौका लगता है मैं यही कोशिश करता हूं कि तुमको जीने का ढंग सिखाया जाए। अगर जीने का ढंग कोई ईमानदारी से सीख लिया, अब जस्ट रिपीट दिस सेंटेंस, अगर जीने का ढंग कोई ईमानदारी से सीख लिया, अगर हम तुमसे पूछें कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छा से कौन जी रहा है तो क्या नाम बोलोगे? हाँ, अच्छा ठीक है। अगर हम बोले किसी दूसरे पर्सनालिटी की बात की जाए तो भारत का एक नागरिक कौन है, प्रथम नागरिक? उसके बाद अगर हम नाम लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री का। ये लोग माशाअल्लाह बहुत मस्त तरीके से जी रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को समाज के लिए दे दिया है। कौन मोदी को गाली दे रहा है, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। कौन उनकी बड़ाई कर रहा है, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। जबकि हम बच्चों में देखते हैं, क्या बात है राहुल तुम आज आया नहीं? कोई बात नहीं। जैसे बोला कोई बात नहीं, हम समझ गए कि सब बात है ना, मुंह फुलाए हुए। आपस में आज इस केयरवेल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कभी जिंदगी में कसम खा लो मुंह नहीं फुलाएंगे। तुमने देखा बच्चे अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं, अद्भुत अद्भुत कार्य, है ना? अद्भुत समझ रहा है? अद्भुत कार्य सबको समझ गया ना? अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं सर हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो जैसे ही आके हमको बोलता है कि हमने कभी नहीं किया, हम समझ जाते हैं कि यही सब कुछ किया है। नहीं तो नहीं आता। जब बात उठी तो पूरा कोचिंग आता पूछने के लिए कि हमने तो कुछ नहीं किया। अगर कोई पर्टिकुलर पूछने आया है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मानते सब बच्चे क्या है सर का तो एज खाली 55 का हो गया है, दिमाग तो इनका बचपने का है, हम इनको किसी तरह से कुछ बोल दे इनको थोड़ी कुछ बुझाएगा। बात यही होती है। यही सोचता है कि नहीं नहीं सुने हैं कि सर इस बार 23 अगस्त को 56 के होने वाले हैं, या 55 का ही कहा जाए, थोड़ा रिदम बैठता है। लेकिन इनका दिमाग तो बचपन का ही है। ये समझ नहीं पाते हैं कि कोचिंग में कौन क्या कर रहा है, कहाँ कौन गुटरुगु कर रहा है और कहाँ कौन कबूतर उड़ा रहा है, सर को तो पता नहीं चलता है। सच्चाई बोलने का ही तुमसे पैसा लेते हैं। हमने बच्चों को कोशिश किया कि बेटा अकेले क्यों रहे हो, आकर हमारे सामने रहो। नहीं सर जी हम तो वहां पैसा पे कर दिए, हम नहीं आ पाएंगे। मेरा तो मन वैसा ही है, टीचर है। बात हो जाती है, ये आ नहीं रहा है। देयर इज समथिंग अदरवाइज अगर मैं किसी को बोलूं कि आकर मेरे साथ रहो, कोई खुश रहेगा कि नाराज रहेगा? बोलो।
हाँ कि ना, जोर से बोलो भाई, उसको अच्छा लगेगा। अगर कोई दूर रहना चाहता है तो हम समझ जाते हैं कि दूर हमें कुछ कारण है। बस में आया? कोई भी अगर दूर रह रहा है तो कुछ कारण है। कुछ बच्चा हमको बोला कि सर जी ये लोग मेरे बारे में कुछ कुछ इधर उधर अफवाह फैला रहा है। दुनिया की तो कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे यार, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, लोगों का कहीं इस फेरा में नहीं रहना है। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेगा, तुमको आगे बढ़ जाना है। और सवाल ये है कि तू अपने घर में क्या कर रहे हो, तू अपने घर में क्या कर रही हो। जब तक तुमने किसी को बताया नहीं, सामने वाला जाना कैसे, है ना। हम अपने मन में विनय सर को बहुत प्यार करते हैं, अकेले में गीत भी गाते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जब तक किसी को बोलेंगे नहीं, आकाश कहां से जान जाएगा, जादूगर है आकाश क्या? हाँ कि ना, सोच के देख लो। जब तक हमने किसी को बताया नहीं तो ये लोग क्या करता है, विनय सर से बहुत प्यार करता है, अच्छा हमको बोल भी देता है कि देखो विनय सर एकदम पटा लिए, हमको बढ़िया से एडवांस सिखाएंगे। अब वो चारों जब अगला चार को बोल देता है तो फिर आके हमको बोलता है कि सर जी लोग मेरे बारे में कुछ कुछ बात कर रहा है। बस में आया? अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा बचा के रखो। जितना सोचते हो ना कि सर नहीं समझ पाते हैं, भगवान के लिए 30 साल हो गया कोचिंग चलाते हुए, तुम तो 30 साल के हो भी नहीं हो। 5 साल पटना में पढ़ाए, 35 साल हो गया पढ़ाते हुए। बहुत लोग के गार्जियन का इसमें एज भी होगा शायद 45, बहुत लोग के माता पिता का एज 45 46 रहा होगा। उतना साल हो गया पढ़ाते हुए। हमको मत समझाओ, खुद समझ लो। जहां तक मेरी बात है, तुम्हारा हर एक गलती माफ है। अगर तुमको लग रहा है कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो, तुम्हारा हर गलती माफ है। आज से पढ़ाई में लग जाओ, जब जगह तभी सवेरा। जब जगह कुछ बच्चे हमको आके पूछते हैं कि सर जी आप आज क्लास में कह रहे थे कि बहुत रात में बात करते हैं मोबाइल से, मेरे बारे में कह रहे थे क्या? हम समझ जाते हैं तेरे बारे में तो नहीं कह रहे थे, मगर अब हम जान गए हैं कि तुम ही हो। जब मैं क्लास में कहा था तो उस समय तो 50 बच्चे थे, तुम अलगे आकाश हमसे पूछने आया तो हम समझ गए कि आकाश था। उसके पहले हमको कोई डाउट नहीं था। जब राहुल हमसे अकेले आके पूछा कि सर जी कहीं मेरे बारे में कह रहे थे क्या, तो हम कंफर्म हो गए कि वो बंदा राहुल ही था। समझ गया? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब रही मेरी बात कि सर अगर हमारे बारे में आप कुछ सुन लेते हैं तो आप खराब मानते हैं क्या? नहीं। हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता, अगर कोई कोचिंग के लिए कहा जाएगा तो यदि कोई तुम्हारे सिस्टम नहीं चलता तो दोष उसका नहीं है, दोष मेरा है। मैं उसको उतना प्यार नहीं कर पाया, इसीलिए इधर उधर प्यार खोजते फिर रहा है। अगर हम उसको एज ए फादर, हम बोलते हैं एज ए फादर, एज ए मदर, अगर हम तुमको इतना प्यार कर देते कि तुमको किसी और से प्यार नहीं खोजना पड़ता तो मजा आ जाता। हर बच्चा क्वालिफाई करता, हर बच्चा। कंपटीशन कहीं भारी नहीं है, इसको भारी हम और तुम बनाते हैं। बिना सर क्लास ले रहे, नहीं करेंगे एडवांस का क्लास, जब एग्जाम में आएगा तो साल भर बाद अब थोड़ा एडवांस पढ़ना है, अब पढ़ना है। साल भर तो बर्बाद कर दिया। थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ा जाता, सर तो साल में 4 बार उसी चीज को दोहराते हैं, 4 बार में किसी को भी दिमाग में समझ में आ जाता कि बात क्या हो रही। तो धीरे 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 अपनी जिंदगी को हम खराब करते हैं, और जिस दिन वो खराब होते होते इतना बड़ा खराब हो जाता है, तब कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य किसी खराब नहीं है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़े, राजा होने में उसको देर नहीं लगेगा। क्या भले उसका दिमाग कम काम कर रहा हो, ज्यादा काम कर रहा हो, उसको मैथ्स आ रहा हो, रीजनिंग आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, डजंट मैटर। यहां पर क्या होता है इस उम्र में, अभी कुछ दिन पहले एक बुक पढ़े थे, हम बताए भी थे क्लास में, 12 फेल। क्या बुक का नाम था? 12 फेल। यूट्यूब पर भी है, फ्री सुन सकते हो। हम तो कोको एफएम पे सुनते हैं, जहां पर हम खरीदते हैं उसको। हमने उस बुक को भी खरीदा, कुहू को भी खरीदवाया, कुहू को पढ़वाया उस बुक को, हमको अच्छी लगी। उसमें कहानी ये थी
वहां पर क्या हुआ, 12 फेल किया एक स्टूडेंट और बाद में वो लड़का आईपीएस हुआ। एक लड़की से उसको प्रेम हो गया था, वो लड़की हो गई आईएएस। देखो प्रेम, हम प्रेम के खिलाफ थोड़ी हैं। अरे भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई प्रेम किया है क्या? उन्होंने पूरा दुनिया को प्रेम में कर दिया, किया कि नहीं? हाँ हूं बोलते रहो भाई, लगे कि जिंदा है। और यदि तुमको किसी से यहाँ पर कोचिंग में प्रेम हो जाता है, रोड पर हो जाता है, तो मना हम थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ा देर रुक जाओ आईएएस हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ आईएएस हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ आईपीएस हो जाओ। अब मेरे यहाँ तो आईपीएस को नहीं हो रहा है, खाली पीओ होना है, पीओ हो जाओ, उस बात को हम आगे बढ़ा देंगे, हम ऑल्सो सुधार दिए। मगर अभी जो छिछोरापन कर रहा है, इधर उधर अपने आप को बदनाम कर रहा है, परिवार की प्रतिष्ठा को मट्टी में मिला रहा है और सोच रहा है सर को बेवकूफ बना लेंगे। बना लो, हम तो बेवकूफ ही है, कोचिंग चला रहे हैं तो हमसे कोई महान बेवकूफ थोड़ी है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया कोचिंग उस दिन, और उसी दिन नहीं यार, कई बार बीच बीच में हम कसम खाते हैं तुम्हारे सामने, सबकी सब गलतियां माफ है, हाँ कि ना? उसके बाद हमसे डरने को जरूरत नहीं है। मेरे पास आके 73 तरह का बात करके, तरह तरह का बात बनाते रहते झूठ मूठ का, सर जी हम ये नहीं किए तो वो नहीं किए, तो वो नहीं किए तो वो नहीं किए। मेरे बारे में लोग ऐसा कह रहा है और तेरे बारे में लोग ऐसा क्यों कह रहा है? तू भी तो कहा होगा 4 से। अगर कुछ जानना कैसे कि तुम क्या कर रहे हो? कुछ जादूगर है क्या? अगर कोई शक कर लेगा इधर हम क्या करें, आपको तो उधर ताकते देखे थे, अरे यार वो तो मेरी बहन है, कहा ऐसा बोल रहे हैं? किसी का माई ताला का हिम्मत होगा उस पर कुछ बोलने का? किसका हिम्मत होगा उसके बाद? नहीं होगा। जैसे ही कहीं बात उठती है उसको वहीं पर रोक दो, बात नहीं बढ़ेगी। कहीं अगर कोई बात उठती है वहीं रोक दो, कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी एक्टिविटी को देखकर कुछ ना कुछ तुम पर कमेंट करेगा। जैसे कमेंट किया, अरे यार तुम उस लड़की को देख रहे थे, तो रिप्लाई करो क्या बात करते हो यार, वो तो मेरी बहन है, मेरी बहन की समान है। उसके बाद तुम्हारा दोस्त का इतना औकात है क्या कि कुछ और कमेंट करेगा तेरे ऊपर, हाँ कि ना? तुम्हारे मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, इसीलिए तुमने अपने दोस्त को मना नहीं किया। वो एक को कहा, दूसरा कहा, तीसरा कहा, चौथा को कहा, और होता क्या है, अब वो कुछ बोला, वो कुछ बोला, वो कुछ बोला। अब राहुल क्लास में क्यों नहीं आ रहा? सोचते हैं सर जी कि अब क्लास में नहीं जाएंगे, क्या हो गया? तो मेरे बारे में कुछ कुछ बात करता है। मोदी का हमने एक भी दिन स्टेटमेंट नहीं सुना कि अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और मेरे बारे में विपक्ष वाला कुछ ना कुछ रोज बोलता है, कभी सुना? अगले दिन आता और एनर्जी में देश को आगे बढ़ाना है। कौन क्या बोला, ध्यान है उनको? देश को आगे बढ़ाना है, नहीं बात करते हैं। तुमको भी अगर कोई कुछ बोल दे, अगर माँ की क्या कहते हैं दूध पिया है, अगर माँ का और एनर्जी में आओ। बहुत ही लोग बोला इसी बार PURBI क्वालिफाई करके दिखाएंगे और सबका मुंह बोली से नहीं रिजल्ट से बंद कर देंगे। होना क्या चाहिए? जितना लोग मेरे बारे में लग फग बोलता है ना, सबका मुंह बंद करेंगे रिजल्ट से, रिजल्ट से। और वैसे भी दुनिया में कहावत है, उगते सूरज को सभी जल देते हैं, है ना? वही माई का लाल कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तू रिजल्ट दिखाना यार, छोड़ना। बहुत ही लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा किया। आज से कसम खुदा की, कसम मेरे माँ बाप की, कसम भगवान की, कोना पकड़ के खाली पढ़ते रहेंगे। अगर लीडर हो तो ठीक है, 24 आवर कोई काम नहीं दिया गया है, क्लास होगा बैठाना बढ़ा दिए, फिर अपना पढ़ाई में लग गए। अभी क्या है, बच्चों की कुछ आदतें हैं, मैं यहाँ कुछ लिख कर रखा हूं। कोचिंग का हमने रूल बनाया, कोई लड़का किसी लड़की से बात नहीं करेगा, कोई लीडर भी किसी लीडरलाइन से बात नहीं करेगी, ये हम लोग का नियम है। लीडर लीडर दूसरा वासगर जो भी है, मगर हम जब देखते हैं तो कोई ना कोई आपस में बात कर रहा है। क्यों भाई? कोई व्हाट्सएप में बात कर रहा है, कोई फेसबुक में बात कर रहा है, सब नौटंकी बंद करो। फॉर द टाइम बिंग साधु हो जाओ, जीवन जीने का मजा आ जाएगा। पास में आया, ज्यादा नहीं बोल रहा है आकाश। फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए बच्चों को दिखाते हैं, देखो बेटा ये तेरा प्रूफ है कि तुम वहां गया था। नहीं नहीं, हम तो वहां पर हनुमान चालीसा लाए थे ना, वही पढ़ने गए थे पीछे। बाहर हनुमान चालीसा आप पढ़ने गए थे, भोरे भोरे 3 बजे आ गए थे कोचिंग में, और गलिया में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे, पढ़ लो बेटा। तुम कहा आ गया सुबह सुबह? तो सर जी मेरा तो चल रहा है रोजाना, तो हम नमाज पढ़ने आए।
मैंने सोचता है कि सर जी का बचपन नहीं, सर तो आज पैदे हुए, सर तो कुछ बुझाता है, जो बुझाए सो बोल दो। सबका उपाय भी है, मगर फंस कहा जाते हैं। बाबा जी ने कहा अगर कोई तेरा बात नहीं सुनता है तो प्यार का डोज बढ़ा दो। ये नहीं कहा तो उसका मुंह छोड़ दो, नहीं कहा। अगर कहते तो कमुआ कर देते तो सीधा हो जाता। तो हम भी 35 सत्संग कर रहे हैं और सिखाया गया है खाली प्यार कीजिए, खाली प्यार कीजिए, खाली प्यार कीजिए, वो सुधर जाएगा। और नहीं तो अगर उसका इतना बड़ा मुंह है ना, अगर थूर दिया जाता तुरंत सब बतिया भग जाता। क्या अगर तुम लोगों को कोई कहे कि सवेरे हम 4 बजे यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने आए हैं, नमाज पढ़ने आए हैं, किसको किसको ये बात सही लगेगा? लगेगा? हाँ हाँ बोलो। तो हमको कैसे लगा होगा? सही लग गया होगा, हाँ। उसके बाद पूरा सच लग गया होगा। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं, घटनाएं। अब कोई बोलेगा कि सर जी तो हमको बोल रहे हैं। जब तुमसे और मेरी बात अकेले में हुई है तो कोई माइक वाला जान लेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं घोर होने की बातें नहीं है। हाँ, अगर तुमने छत्तीस में कह दिया होगा कि सर ऐसा बोल रहे थे तो लोग जान जाए। अदरवाइज मैं तो कुछ गुप्त बात अकेले में करता हूं। जब भी किसी का बड़ाई करना होता है तो सबके सामने क्या आता है, याद रखना। अगर किसी को सुधारना है, बीइंग अ टीचर, बीइंग योर फादर, मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई जस्ट टीच यू हाउ टू लीड योर लाइफ। दैट टाइम आई जस्ट have taken some example for you, and when I just told you anything, that time only you and I was present there. अगर तीसरा कोई कहां से जान जाएगा जब तक तुम खुद नहीं कहोगे। मान लो भगवान ना करे पढ़ते पढ़ते किसी लड़की से इश्क हो गया, होना नहीं चाहिए, मगर लोगों अगर हो ही गया, जब तक तुम 36 को से नहीं कहोगे कोई जान जाएगा क्या? अरे मन में आ गया कि नहीं सर जी, सर से आके बोले कि सर आप तो आज में कल जान ही जाएगा, हमको उससे प्यार हो गया है। तब कहते ठीक है बेटा, पीओ का रिजल्ट लेके आओ, फिर तेरा प्यार को हम भी आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो रिजल्ट का जगह लेके आएगा चपरासी का। सर जी हम सोचे हैं आज से नहीं पढ़ेंगे, तो काफी मांगेगा। एक से एक इंटेलिजेंट लोग यहाँ इंटर का ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तुमने सुना राहुल 6 घंटा पढ़ा रहा था, हमने सिर्फ 3 घंटा के लिए अलाउ किया था। एक बात बोल देते हैं हम तो, अच्छी बातें, अच्छी बातें हो गई ना, अच्छी बातें बोलने की हम फेमस है। अगर राहुल 3 घंटा ट्यूशन पढ़ाया रहता ना, ये क्लर्क नहीं पीओ जाकर ज्वाइन किया रहता। बात में आया? जिस दिन ये बात समझ में आएगा ना उस दिन राजा हो जाएगा। बात कहां से कहां बोल दी, ध्यान देना। मैंने 3 घंटा के लिए अलाउ किया था, अगर थोड़ा सा और गरीबी में रखकर, ठीक है दिक्कत था घर में इसलिए इसने पढ़ा रहा था, मगर यदि 3 घंटा तो रुक गया रहता ना तो आज क्लर्क ज्वाइन नहीं किया रहता, पीओ हो गया रहता। ये अंतर है बेटा, छोटा छोटा अंतर है। 2-4 नंबर से पीओ में नहीं होना, उस 3 घंटा को बचा के यहीं पर झोंक देते। इसलिए सबके साथ कुछ न कुछ लिमिटेशंस रखते हैं और सबके साथ कुछ न कुछ बातें रखते हैं। तो तुम तो सिर्फ एक बात सुन लेते हो कि भैया 6 घंटा पढ़ाया फिर भी क्वालिफाई कर गया, तो हम भी छुप छुप के 8 घंटा पढ़ा सकते हैं, क्वालिफाई ना करना है। आपकी जो बात बोली शायद तुम्हारे ऊपर ब्रेक लगा होगा। अभी कमाता है 30,000, 35,000, 70,000 कमाते ना, ट्यूशनों में कमा लिया होगा 2 साल में कितना कमा लो, 6 12 6 72 1,40,000। अब पीओ हो गया रहता 8 महीना पहले से, तभी कमा चुका रहता 5 लाख। अंतर यही लाइफ का है। किसी को मेंटर मान लो, उसकी हर बात मानो, बेटा यहाँ आ जाओ, बेटा वहां चल जाओ, चल जाओ, आज मत पढ़ो, चलो आज पिक्चर देखने चलो, तुम नहीं जाओ पिक्चर देखने मत जाओ। वो भी बात को सेकंड कर रहा है, ठीक है। जैसा कहा गया वैसा बात मान लेना है, क्योंकि एक बार कहा था बात बन जाएगी, बात मानो। अगर अब हम कहीं अगर जा रहे हैं, चलो समीर चलते हैं यार, समीर बोला यस सर, करण तुम भी चलो, यस सर, बेने बोला हम चले ना, अभी ने बोला सर जी तो हमेशा ऐसी करते रहते हैं, पता नहीं इनको कौन जन्म का हमसे बैर है। हम पहले भी देखे हैं कि जब भी गए हैं तो हमको लेके खाली नहीं गए हैं, अरे रहा है अभी नहीं, मुंह लटका के। कभी मेरा सपना में ऐसा इरादा नहीं था कि मैं किसी को दुखी कर दूं, मगर कुछ लोग दुखी होने का ठेका ले लिया। कुछ बच्चे दुखी होते हैं ना, मेरा यार कलेजा फट जाता है। इतना बार हुआ, कोई लड़का कुछ बदमाशी किया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, कोई क्वेश्चन रिसर्च किया, कोई आपस में झगड़ा कर लिया,
तुम जरा सोच के देखो, इस 1.5 साल 1 साल 2 साल में क्या हम कभी किसी से बात करना बंद कर दिए? आज से तेरा मुंह नहीं देखेंगे ऐसा कर दिए क्या? मगर ये हमको नहीं अरे पूरा एकदम कंटिन्यू है। कौन इतना पहाड़ गिर गया? हर हाल में खुश रहेंगे, कसम खा लो अभी सामने, हर हाल में खुश रहेंगे, ईगो नहीं लेंगे। हम लोग को सत्संग में सिखाया होता है बार बार कि सत्संग में कोई आपको हो सकता है कि आगे बैठने के लिए नहीं कहे, पीछे बैठने के लिए कहा दे। आप सोच के गए थे 4 ठो गाना, हो सकता है सत्संग में गाना गाने का मौका नहीं मिले। आप सोच के गए थे कि आज स्पीच देंगे, हो सकता है मौका नहीं मिले। बुरा नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना है। मतलब अगर हम लोग को जीवन में आगे बढ़ना है तो बुरा किसी बात का नहीं मानना है, सबको माफ करते रहना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हम लोगों की करोड़ों गलतियों को माफ कर दिया, और अभी भी कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कभी किसी को डांट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, गलती है। जो कहा जाए भगवान माफ करता है तो हम किस खेत की मूल्य है, हमको भी सबको क्या करना है, माफ कर देना है। अभी आफरीन कह रही थी कि हमको तो पता ही नहीं था कंपटीशन क्या होता है। बच्चों तुमसे रिक्वेस्ट है, ऐसे हजारों लोग चास बोकारो और पूरे इंडिया में हैं जिनको पता नहीं कंपटीशन क्या होता है, उनको व्हाट्सएप पर मेरा मैसेज दे दो, सर ने बुलाया है पढ़ने के लिए, एनएससी में आके पढ़िए। बहुत गरीब होगा उससे कम फी ले लिया जाएगा, एकदम लाचार होगा जीरो फी वाला से जीरो ले लिया जाएगा, तो ठीक ठाक होगा अपना ईमानदारी से पूरा फी दे देगा। मगर सारे लोगों को पता होना चाहिए कि कंपटीशन क्या है, बता दो। इंटर का एग्जाम खत्म हो रहा है, झूठ मूठ का नए बच्चे चंचलता में कोई दिल्ली एडमिशन ले लेगा, कोई रांची ले लेगा, कोई पटना ले लेगा, कोई भागलपुर ले लेगा, कोई जाके कलकत्ता में ले लेगा, कोई जाके कानपुर ले लेगा, क्योंकि पढ़ाई यही हो रही है, क्वालिफाई तो यहीं से कर रहा है। तो सबको बताना भी है। कितना सुंदर प्रोग्राम का स्टार्ट किया था विद्युत, प्यार का बंधन है, तो हम उसी बंधन को बांधते हैं, प्यार का ही बंधन है, जबरदस्ती का नहीं। आजकल तो शायद किसी को मारते हुए नहीं, गलती से हाथ उठ गया हो अलग बात है, जब पहले कितना मारते थे पता कर लेना, भी नहीं जानता है, कारण भी जानता है, समझ गया ना। तो अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिशन के अनुसार चले, प्यार से ही चले, इसलिए हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स लिखे थे तो करीब करीब सारी पॉइंट्स को डील कर दिए। ध्यान देना है, अगर सर ने तुमको कहा है कि बेटा मेरे पास आ जाओ तो दिमाग मत लगाओ, अकेले रहोगे कुछ ना कुछ लंड फंड करते रहोगे, समझ में आया? अगर कहीं बोल रहे हैं कि बेटा यहाँ बैठ के पढ़ो, दिमाग मत लगाओ। आज सुबह ही शायद एक बच्चा से हमने कहा कि बेटा आज केयरवेल कर लो, कल से तुम्हारा हम लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। जब यहाँ पढ़ने आए हो रोड पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मेरे यहाँ धोनी और कोई नया प्लेयर बनने ना आया है क्या? यहाँ नौकरी लेना, पर नौकरी लो ना, बाद में प्लेयर बना जाएगा। संडे सैटरडे छुट्टी रहेगा बैंक में, आजकल होने वाला सैटरडे छुट्टी भी एसएससी में हो जाएगा तो सैटरडे संडे छुट्टी ही रहता है, आराम से प्लेयर बनते रहना। अभी सिर्फ नौकरी ले लो। कल भी शाम को देखे कुछ बच्चा सब मोटरसाइकिल से घूम रहा है रात को 9 बजे। स्टूडेंट को नहीं घूमना, जब तक जॉब नहीं लग गया तब तक घूमना नहीं है ना। हम कभी रिवील नहीं करने जा रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो समझ रहा है बात को ना। कुछ बातें जरूरी होती है तुमसे करना, वो अगर आधा में अगर छोड़ दो तो फिर केयरवेल का मजा नहीं आएगा। केयरवेल मतलब अपना केयर एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर दो। अब तुम्हारा बैच खत्म हो गया है, तुम नौकरी की ओर जा रहे हो, नौकरी ले लो, यही मौका है। सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कसम खा लो, यहाँ पर मन नहीं खा लो। अच्छा मैं खड़े कसम खिला देते हैं, खड़े हो। कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानेगा, सबसे प्यार करेगा, किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा और जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। चलो ऐसे हाथ करो सब कोई। टीचर लोग मन में सोच लेंगे कि हम बच्चों को क्वालिफाई कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम बच्चों को देख बोल रहे हैं। आज हम ये प्रण लेते हैं जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाए हम कोशिश करेंगे अपने शिक्षकों की सारी बात मानने का। इस बीच में अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार भी करता है तो हम इसका बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ पढ़ाई में ही लगे हुए हैं। दिन रात मेरा एक ही टारगेट होगा कि हम जल्द से जल्द नौकरी लेकर अपने माँ बाप और एनएससी का नाम रोशन करें।
ऐसा हम शपथ ग्रहण करते हैं। थैंक यू, बढ़िया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।